Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today I came with the topic channels of distribution. It comes under the drugstore business management or marketing. It is also very much important in the drugstore business management. Okay, so channels of distribution. Okay, so what is its exactly meaning? See, the word channel means the route, or distribution means supplying from one place to another place. Take an example, producer is there, or manufacturer produces the goods, and what is the use of producer? To reach the whatever the goods which are produced by the producer to reach the customer. So producer will be present in one place, producer or manufacturer will be location will be far from the customer. Hence what we need to make the distribution successful or to reach the customer, what we are adapting, producer is appointing as a wholesaler. So wholesaler, what he will do, he will purchases the goods from the producer, and wholesaler will sell to the retailer. Wholesaler sells to the retailer. Wholesaler purchase from the producer, and wholesaler will sales to the retailer, and ultimately the retailer again these goods will be sold into the customer. So thereby the routes, you see that the producer to wholesaler one route, wholesaler to retailer one route, and the retailer to customer one route. So during this process, how the distribution, how the channels you are adapting, for example producer to wholesaler, what the method you are adapting for the supplying of the goods, whether you are roadways or airways or seaways, what you are adapting, and from the wholesaler to retailer, what is the way you are adapting, and from the retailer to the customer, how you are adapting the distributing of the produced goods, so that your success of your marketing of your product. So that is the channels of distribution. So in this class we are clearly defining the channels of distribution means what are its advantages, and what are the factor to be considered in the selection of the right channel of distribution. Right channel of distribution. So let me define what is channels of distribution. Channels of distribution of a product is the route taken by the goods as they move from the producer or a manufacturer to ultimate the consumer or a customer. So this is the definition of channels of distribution. I am repeating, channels of distribution of a product is the route taken by the goods as they move from the producer to ultimate consumer. Producer are nothing but manufacturer. When the manufacturer manufacture the product, so those product, how you are getting into the market to reach the customer, what the process, what is the way you are adapting from the goods from the producer to till the reaching into the customer. So that is called as channels of distribution. So these channels of distribution plays an important role, because the successful of the channels of distribution, only the product is available to the customer. If the producer is producing the goods and keeping on going on storage in the producer place itself, so that will become as the loss, or the product will not available to the customer, and there is no use of making of enormous quantity of the product. Once the producer producing the goods, ultimately the product has to reach the customer without any deficient or without any the problem. So that is why channels of distribution is another important criteria to consider for the success of any business. So let me discuss what are the advantages. Goods are available to consumer at the all time. मतलब जैसे ही प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करता है, वो जो रहता है ना गुड्स, कस्टमर को हर हमेशा टाइम पे वो सहूलत रहना, मिलने उनको परचेज के लिए सहूलत रहना, वो इम्पोर्टेंट रहता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अगर सही चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप सेलेक्ट किया तो आपका गुड्स हमेशा आपके दुकान में रहता है. जैसे कस्टमर आ जाता है, आप लोग आराम से उनको बेच सकते हैं. कॉस्ट इज इकोनॉमिकल कंपेयर टू द प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब क्या हो जाता है, जैसे समझ लीजिए प्रोड्यूसर खुद प्रोड्यूस करता है, यही प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को भेजना बोले तो उसका जो एक्सपेंसेस रहता है बहुत ज़्यादा हो जाता है. इसलिए उन्होंने क्या करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, होलसेलर को भेज देता है, होलसेलर रिटेलर को भेज देता है, रिटेलर कस्टमर को भेज देता है. ये जो चेन करने से क्या हो जाता है, उसका जो
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रहता है ना बहुत ही कम हो जाता है। अब समझ लीजिए एक 10 टैबलेट कस्टमर को चाहिए पैरासीटामॉल, प्रोड्यूसर विल नॉट कम टू योर 10 टैबलेट्स टू सेल द और डिस्ट्रीब्यूट द कस्टमर। सो इसलिए वो जो एक्सपेंस हो जाता है ना बहुत ही महंगा होता है, वो महंगा जो है ना चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग निकाल सकते हैं। फाइनेंस बर्डन इज डिक्रीजेस टू प्रोड्यूसर, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्यों बोले तो प्रोड्यूसर जो गुड्स बेचता है ना डायरेक्टली कस्टमर को बेचना बोले तो बहुत ही कम क्वांटिटी में बेचना पड़ता है। सो उससे क्या हो जाता है, फाइनेंस बर्डन ज़्यादा हो जाता है। सो ये बर्डन निकालने के लिए क्या करना है जितना भी समझ लीजिए आज एक 100 बोतल पैरासीटामॉल सिरप प्रोड्यूस किए बोले तो ये जो 100 बोतल कस्टमर को डायरेक्ट नहीं बेच सकते, इसलिए उन्होंने क्या करता, होलसेलर को 100 का 100 बेच देता। होलसेलर रिटेलर क्या करता, रिटेलर एक 50 ले लेता, ऐसे दो रिटेलर 50-50 लिए तो होलसेलर का स्टॉक खत्म हो जाता है। और रिटेलर क्या करता है, कस्टमर जैसे जैसे आ जाता है ना वो बेचते चालू हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, सो फाइनेंस बर्डन जो रहता है ना प्रोड्यूसर को बहुत ही कम हो जाता है। क्यों बोले तो जब होलसेलर परचेज करता है प्रोड्यूसर से वहाँ पे पेमेंट हो जाता है, और रिटेलर जब परचेज करता है होलसेलर वहाँ पे भी पेमेंट हो जाता है, कस्टमर जब परचेज करता है रिटेलर से वहाँ पे भी पेमेंट हो जाता है। इस तरह से पेमेंट भी सही हो जाता है और प्रोड्यूसर को जो प्रोड्यूस्ड गुड्स का कीमत कितना रहता है उनको टाइम पे मिल जाता है और फाइनेंस का बर्डन बहुत ही कम हो जाता है। हेल्प्स इन रीजनेबल प्राइस फिक्सेशन, ये बहुत ज़रूरी है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर रहने से क्या हो जाता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट फिक्स हो जाता है, फिक्स हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, कस्टमर को कॉन्फिडेंस रहता। समझ लीजिए होलसेलर प्रोड्यूसर में भी सेल टू द कस्टमर वेरी लेस प्राइस बट फ्लक्चुएशन हो जाता है, इसलिए एक इनका जो मार्जिन है होलसेलर को कितना लेना वो मार्जिन ले जाता, रिटेलर होलसेलर सर कितना लेना वो मार्जिन लेता है, और रिटेलर कस्टमर को भेजने से कितना मार्जिन लेना है वो मार्जिन लेके ले लेता है। सो इसलिए क्या हो जाता है, टेंशन नहीं रहता है, मतलब रीजनेबल प्राइस में आ जाता है कस्टमर को, जो भी एक्सपेंसेस लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस विल बी एलिमिनेट्स। इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड स्टैंडर्ड लिविंग स्टाइल, इससे क्या हो जाता है हर लोगों को नौकरी मिल जाता है। समझ लीजिए प्रोड्यूसर रहता है वो या मैन्युफैक्चर रहता है, वहाँ पे भी चंद लोगों को जॉब मिल जाता है। होलसेलर रहने से होलसेलर के हाथ में उनको भी जॉब मिल जाता है, रिटेलर के हाथ में भी मिल जाता है। इस तरह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है, जो भी एम्प्लॉयज़ रहता है उनका एक लिविंग स्टाइल भी अच्छा बन जाता है। तो ये इससे क्या हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट भी सॉल्व हो जाता है। इट सॉल्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम टू द प्रोड्यूसर, क्यों बोले तो बहुत ही हेडेक है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करके हर लोगों को, हर पेशेंट को, हर कस्टमर को जाके देना वो बहुत ही मुश्किल का काम है प्रोड्यूसर के लिए। इसलिए ये जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन को टेंशन ही नहीं रह जाता, किसको, प्रोड्यूसर को। क्यों बोले तो अपना आप जो भी प्रोड्यूस करता है वो डायरेक्टली होलसेलर को बेच देता तो आराम से बैठ जाता, आगे का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा वो भी उनका टेंशन नहीं रहता। ओनली द मार्केटिंग, प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज जो करना है वो प्रोड्यूसर कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक अवेलेबल टू द रिटेलर। इस तरह से द मेजर एडवांटेजेस ऑफ द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेट वी डिस्कस फैक्टर टू बी कंसिडर इन द सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर, कौन सा फैक्टर कंसिडर करना बेहतरीन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सक्सेस ऑफ ए दिस बिजनेस। सो फर्स्ट इज द नेचर ऑफ गुड्स। पहली बात क्या है, कौन सा नेचर में है गुड्स, वेदर इट इज एन रॉ मटेरियल है, मशीन्स है, बल्क प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो समझ में आना। उसके हिसाब से हम लोग द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे रोड ले सकते, रेल ले सकते, प्राइवेट ले सकते, एयर ले सकते, सी ले सकते, जो प्रोडक्ट है ना प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्शन करना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केट, वो बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो मार्केट कैसा है वो समझ में आना, तो उसके हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करेक्ट कर सकते हैं। समझ लीजिए नेचर कैसा है, नंबर ऑफ परचेजिंग कैसा है, लोकेशन कहाँ पे, बाइंग हैबिट ऑफ कंज्यूमर कैसा है, कौन से एरिया में किस तरह से हैबिट है, कौन से एरिया वाले क्या परचेजिंग ज़्यादा करते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट किस तरह से जाता है, कौन सा उनका लोकेशन कैसा है, उनको नियर टू डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करे तो कैसा रहता बोल के उसको जो स्टडी करते हैं ना, नेचर ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केट बोलते हैं। रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग चैनल, मतलब अभी जो चल रहा है, पीछे पहले से चल रहा है, अभी जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट किया उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं कस्टमर को, या उससे अच्छा बेहतरीन बनाना क्या, कौन सा भी रूट ऑफ चैनल बनाना क्या है। सो वो जो स्टडी करते हैं ना उसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग सम, मतलब प्रेजेंट कौन सा रूट ऑफ
चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके हिसाब से वो सही है कि नहीं, उससे भी अच्छा आप लोग पर कर सकते क्या, वो सोचने के लिए उसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग चैनल। कस्टमर बाइंग हैबिट, ये बहुत ज़रूरी है। अभी समझ लीजिए कर्नाटका वाले वो प्रोडक्ट ले रहे हैं अच्छी तरह से बोले तो कर्नाटका का बाइंग मेथड अच्छा है बोल के, अभी महाराष्ट्र में कम ले रहे बोले तो वहाँ पे कम है इधर डिमांड, तो वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो स्टेट वाइज या प्लेस वाइज कौन से एरिया में क्या प्रोडक्ट कैसा क्वांटिटी में लेते वो बहुत ज़रूरी है, उसके हिसाब से आप सही सलामत से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना। सो एग्जाम्पल लार्ज क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी और पेमेंट कैसा है, ये सभी जानकारी लेके हम लोग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करना। कुछ लोग रहते हैं प्रोडक्ट ले लेते पेमेंट बहुत कम हो जाता है, कुछ लोग प्रोडक्ट कम लेते पेमेंट्स बरोबर रहते हैं। ये सभी चीज़ हम लोग कैलकुलेशन करके हम लोग सेलेक्ट करना कौन सा सही से कौन सा रूट पे गए तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ईजी होता है, इकोनॉमिक हो जाता है। म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड मिडिलमैन, ये बहुत ज़रूरी है। सक्सेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स will depend upon the middlemen. Though are the middlemen are the example wholesaler में भी retailer में भी are there. सो प्रोड्यूसर और ये जो मिडिल मैन्स रहते हैं ना जैसे होलसेलर रिटेलर, अगर ये सभी लोग इंटरेस्ट करें तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट भी अवेलेबिलिटी सब चीज़ अलग अच्छी तरह से रहता है। अगर म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं रहे तो प्रोड्यूसर से होलसेल को अच्छा नहीं, होलसेलर रिटेलर को अच्छा नहीं बोले तो क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, तो उनका कंपनी का प्रोडक्ट लेने वाले कम हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट विल बी डिले इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक इनटू द मार्केट। सो इसलिए इस तरह से द मेजर इंपॉर्टेंट फॉर द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का उसका डेफिनेशन क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होता है, फैक्टर्स क्या हो जाता है, ये सब जानकारी हम बहुत सरल से समझ में आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।